به نام خدا. درس 2 شهر تهران. شهر تهران. خب اینا یک CD هم درست کردن. CD در اختیار من نیست که تو این CD چند تصویر از تهران هم وجود داره. شما یک سرچی بزنید در اینترنت، عکس های فراوان، یعنی ویدیوها یا عکس های فراوان از شهر تهران رو میتونید در اینترنت پیدا کنید. یه زمانی مثلا ما دسترسی به اینترنت نداشتیم، ما کامپیوتر نداشتیم، ما لپتاپ نداشتیم، ما موبایل های هوشمند نداشتیم. اون موقعی که مشکل بود، یعنی خب اگر ما دنبال سراغ اطلاعی میگشتیم پیدا کردنش خیلی سخت بود. الان دیگه خدا رو شکر که ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم. عصر اطلاعات، انفارمیشن ایرا، عصر ایرا کو کہا جاتا ہے. ما در یک عصر اطلاعات زندگی میکنیم و به همه اطلاعات ما دسترسی داریم از طریق اینترنت، از طریق کامپیوتر. و تمام اطلاعات دسترسی داریم. شما یک شهر تهران رو یک بررسی کنید، سرچ کنید در اینترنت و کل اطلاعات در اختیار شما هست. شما میتونید در تمام اطلاعات در مورد شهر تهران رو پیدا کنید، به دست بیاورید. تهران یک شهر خیلی بزرگ و خیلی زیباست. خب اینجا یه عکسی رو میبینید شما، شهر تهران. اینجا یه عکس میبینید، اینجا عکسی رو میبینید. آقا یواش یواش بگین. خب یواش میشه یواش یواش بگید، یواش نمیگیم، یواش یواش. آهسته صحبت کنید، آهسته آهسته صحبت کنید، اینجوری. خیلی خوب، انشالله من سعی میکنم که آهسته آهسته شمرده شمرده حرف بزنم برای شما. درسته؟ خوبه الان؟ ممنون، خیلی خواهش میکنم. بله بله بله. خب این شهر تهران، شهر تهران، تهران का शहर، यानी اینجا این مضاف و مضاف الیه هست. जैसा कि आपको बताया मैंने, इजाफा जो पढ़ाया मैंने, जेनेटिव जो केस है या क्या कहते हैं, एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से जब हम निस्बत देते हैं तो यहाँ पे शहर तेहरान के एक्सप्लेनेशन के लिए आया है. ये इजाफा ये तोज़ीही है, इजाफा ये तोज़ीही वजाहत के लिए कि ये तेहरान किसी सिटी का नाम है. नहीं तो तेहरान टावर का भी नाम हो सकता है, तेहरान किसी इमारत का नाम हो सकता है, तेहरान यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है. यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करना चाहें तो दानिशगाह तेहरान कहेंगे. خب در این عکس خانم مریم شما بفرمایید که تو این عکس چی میبینید شما؟ سوری آقا این چیه؟ اینجا چی میبینید شما؟ اینجا چی میبینید؟ आपको क्या नजर आ रहा है? آقا ماونتن. خب شما کوه را میبینید. من یک کوه را میبینم. خب کوه ها هم هست و تپه ها هم هست اینجا. خب تپه ها، تپه टीले को कहा जाता है, کوه पहाड़ को कहा जाता है. خب شما کوه را میبینید، دیگه چی میبینید؟ एक चीज आप सब बताएंगे, ठीक है. شما کوه را میبینید. خانم زیبا شما بفرمایید چی میبینید؟ غیر از کوه چی چیزی هست دیگه؟ آقا کی؟ من؟ نه خانم زیبا. سر بفرمایید. خب غیر از کوه دیگه چه چیزی هست اینجا؟ خانم میاد، نوبت شما هم میاد. خب کوه رو میبینید، دیگه چی هست خانم زیبا؟ मेरे लिए कुछ बचेगा नहीं. बच जाएगा, आप बेफिक्र रहें. दो ही तो चीजें हैं सर. बर्फ को क्या आसमान. कोहे. برف میبینید شما. خب خیلی خوب، برف میبینید. خب خیلی خوب، نه دیگه برف میبینید. خب خانم سنا شما بفرمایید دیگه چی میبینید؟ اینجا دیگه چی هست؟ در این عکس دیگه چه چیزی رو میبینید؟ آبی آسمان. خیلی خوب، آسمان آبی. آسمان آبی، بلو اسکای. خیلی خوب، آسمان آبی رو میبینید شما. دیگه خب خانم رابیه شما بفرمایید دیگه چی چیزی رو میبینید؟ آسمان آبی هست، کوه هست، برف هست، دیگه چیه؟ خانم رابیه یه چیزی بگید حداقل که اینجا چی چیزی رو میبینید شما؟ آقا آب رها است.
آب روان هم هست، یعنی اینجا دیگه میبینید که شما آب داره، اینجا مسیر آب، पानी की गुजरगाह को हम कहते हैं مسیر آب. آب روان هم هست. خیلی خوب. آب روان. خانم سایما الان بگید غیر از آب دیگه چی هست اینجا؟ آقا اینجا در این عکس سبزه خیلی زیاد است. این عکس سبزه داشت. سبزه داره. در این عکس شما سبزه هم میبینید. خب آقای اون شما بفرمایید دیگه چی هست اینجا تو این عکس؟ چی میبینید شما؟ همه چیزها رو میبینم، همه گفتند آقا. خب خیلی چیزهای دیگه حالا وجود داره. ابر هست. من میبینم ابر هم میبینید، ابرهای سفید. ابر هم هست دیگه. ابر پاره ها، این تکه های ابر رو میبینید که در آسمان از این ور و اون ور میره. ابر هست. آقای دکتر ظفر الان نوبت شماست که سخت پیدا کردنش، ولی هست چیزهای فراوان الان وجود داره. خوب آقا. کوه خشک. خب کوه رو گفت، کوه ها رو گفتن. یعنی این چیه در واقع؟ این چی میگیم ما؟ این کوه ها، این چوٹی को क्या कहते हैं؟ चोटी को. अब मुहिमतरीन चीज رو برای شما مونده باقی. قله کوه है. شما पहाड़ की चोटी को भी देख रहे हैं ना. قله کوه، قله کوه رو میبینید. پس خیلی چیزها هست که یه عکسی هست که شما تمام این چیزها رو میبینید که مظاهر طبیعی هست که طبیعت رو میبینید. در واقع این طبیعته. این چیه؟ طبیعت. شما میبینید کوه هست، دامن کوه هم هست، تپه ها هم هست، سبززارها هم هست، مسیر آب هم هست. خب یه آسمان تمیز و آسمان صاف و آسمان آبی رو میبینید. تکه های ابر رو شما میبینید. خیلی چیزها که تو اینجا میبینید که شما. خب این در واقع چیه که عکسی که اینجا نشون داده شده؟ این عکس قله دماونده. دماوند، قله دماوند. دماوند की चोटी. दमावंद की चोटी जैसे से केटू की चोटी है, इसी तरह से दमावंद उस पहाड़ का नाम है. उसकी चोटी को कुल्ले दमावंद कहा जाता है. ये तेहरान की एक निशानी के तौर पे, यह कदीम ज़माने से ये पहाड़ तो हर ज़माने में मौजूद रहा है. इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. तेहरान तो बहुत बाद में बना है. ये चोटी तो बहुत पता नहीं कब से है, जब से ये दुनिया बनी है तब से चोटी मौजूद है. خیلی خوب. الان اصطلاحات یا کلمات جدید این درس رو میخوانیم. اول ارتفاع، هایت، بلندی، اونچایی. اکنون، حالا. ये दोनों एक ही है. اکنون رسمی है، حالا غیر رسمی. هر دو صورت استفاده میشه. بزرگراه، हाईवे. بزرگراه یعنی बड़ा रास्ता, हाईवे. शाहरा. शाहरा जो होती है ना, शाहरा आप कह सकते हैं, हाईवे, शाहरा. बिस्यारी, मच, दोनों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. बीश, बीश ज्यादा, मोर. ठीक है. اینجا چی میبینید؟ این چیه؟ सर क्या चीज؟ برج. عکس. تو این عکس چی میبینید؟ تهران टावर. تهران टावर है. सर ऐसे कोई नाम है मुझे याद नहीं आ रहा. अच्छा बुर्ज मीलाद है. बुर्ज मीलाद है. पहले भी आप पढ़ चुके हैं बुर्ज मीलाद के बारे में. आई थिंक नाम तस्करा आया ही. इन बुर्ज मीलाद है. ये हदूद तकरीबन 400 मीटर बुलंद है. इर्तिफाश आज 400 मीटर हम बिश्तर है. बुर्ज मीलाद यानी ची मिलादे ची कसी. मीलाद टावर. मीलाद टावर. मिलाद किस चीज का मिलाद? नाम रखा है मिलाद, उसका नाम रखा है. ठीक है. मिलाद टावर. ठीक है. हम जब अगर के ये कहे कि तो किस चीज की नुमाइश, ये तो बात तो नहीं बनेगी. मतलब रखा है, नाम रखा है मिलाद टावर. राइट. जालिब, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग. जमइयत, आबादी. पॉपुलेशन, आबादी. जमइयत, आबादियां. चिकसी, इसकी जमा है चिकसानी, खी. खी
कौन राह वे रास्ता, ज़ीबा व कशंग यकी है। خب प्यारा। زیبا و قشنگ معنی هر دو کلمه یکیه. شمردن ستا که حالش गिनना। هست شمار، गिनना. خب شمار، लेकिन स्पोकन पर्शियन में तो शुमर कहते हैं, अलिफ के बगैर भी कहते थे, बेशुमार, शुमर, बेशुमार. फहमीदन फहम, समझना। समझना. मुख्तलिफ मुख्तलिफ जी. मुकायसे तकाबुल, कंपेयर चीजों को तकाबुल करना, वेरी गुड. कंपेयर करना, कंपैरिजन. मुकायसे करदान मुकाबला करना है, मुकायसे करना, मुकाबला करना तो चीजों का सर, मुवाजना करना. सर इसको गायसे नहीं पढ़ेंगे, गा नहीं पढ़ेंगे इसको। पढ़ सकते हैं मुगायसे, मुगायसे, कायसे दोनों तरह से पढ़ सकते हैं. मुगायसे, मुगायसे. तो मुकायसे करदान मुवाजना करना, मुकायसे मुवाजना, मुकायसे करदान मुवाजना करना, मुकाबला करना नहीं है. जी सर, सॉरी। तो मुहाजिरत, हिजरत करना, हिजरत, हिजरत को मुहाजिरत कहते हैं. बराए जिंदगी बेजाय दूरी रफ्ता, सही। मतलब दूर जाने को कहा जाता है. ठीक है, आप कराची के एक डिस्ट्रिक्ट से उठ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए, दैट इज नॉट मुहाजिरत. मुहिम, इंपॉर्टेंट, अहम, जिसे हम कहते हैं अहम, इसी में मुहिम कहते हैं. मिलियन, हजार हजार, हजार हजार, मिलियन यानी सर 10 मिलियन लाख. तो वो 10 लाख हो गए। तो ये 10 लाख हो जाएंगे, हजार हजार. अच्छा सर। हो नुक्ते, नुक्तेची मिशे पॉइंट, प्लेस. नुक्ते हा या नुकात, नुकात या सर नुक्ता हा. मिसाल के तौर पे, मिसाल भी जनीत, मिसाल بعدا میاد ولی در کراچی نقاط دیدنی زیادی وجود داره. कराची में देखने के पॉइंट्स बहुत सारे. नुक्ते हा, वजूद दाश्तन, टू एग्जिस्ट, मौजूद होना. चल خب برج اینو میبینید که یه عکس بزرگراه है, بزرگراه, हाईवे. ठीक है, اینجا میبینید این یه چیه, ساختمانه, ساختمان. اینو هم قبلا، اینو هم یک نوع برجه. خب ساختمان. کوه، پهاड़. کوه. این چیه, هتل. این چیه, هتل هست. هتل، هتل، هتل میشه. هتل. متن رو ما در پایان نکته های دستوری میخوانیم. الان میریم سراغ نکته های دستوری. خب पहला पॉइंट जो आज हम पढ़ेंगे वो है मसदर. पहले चैप्टर में हमने क्या रिवाइज किया, बूदन को रिवाइज किया. बूदन को अस की शक्ल में लिखते हैं हम, बाश की शक्ल में लिखते हैं, बूद की शक्ल में लिखते हैं. सम टाइम हम उसको मुख्तसर करके अस्त को हज़्फ करके भी लिखते हैं. डायरेक्ट इस्म या सिफत के साथ बूदन का शिनासा हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो जैसे मनखूब हस्तम के बजाय हम कह सकते हैं मनखूबम. तो ये चीजें तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी. दूसरे चैप्टर में हम सबसे पहले जो लफ्ज पढ़ रहे हैं वो मसदर है. मसदर क्या है? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. प्रेजेंट सर प्रेजेंट नहीं ना प्रेजेंट भी नहीं सर, मसदर का फॉर्म है ना सर. जी देखिए, मसदर के बारे में मैंने पहले आपको बहुत डिटेल से बताया था. दोबारा मैं बता रहा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा. मसदर का जो लफ्जी मानी है ना, मसदर के जो लफ्जी मानी है वो है निकलने की जगह, सादिर होने की जगह. हुक्म सादिर हुआ कहते हैं ना हम, या हुक्म सादिर हुआ या हुक्म सादिर किया. तो किसी भी चीज के निकलने की जो जगह है उसे मसदर कहते हैं बुनियादी तौर पर. लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मसदर वो इस्म है, मसदर वो इस्म है या वो कलिमा है जिससे फेल सादिर होते हैं. आ गई बात समझ में? मसदर एक इस्म है बुनियादी तौर पर. मसदर क्या है? इस्म है जिससे क्या निकलते हैं, फेल निकलते हैं, जिससे हम फेल बनाते हैं. तो मसदर इस्म है.
पहली बात तो ये। तो मसदर में किसी काम के करने या होने का तसव्वुर पाया जाता है। मसदर में किसी काम के करने या होने का तसव्वुर पाया जाता है। सर बात सुनिए, वर्ब की भी तो वही तारीफ होती है, वर्ब भी तो उसी को कहते हैं जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। अच्छा सॉरी। हाँ, मेरी बात आप खत्म हो जाए तो फिर समझ में ना आए तो आप फिर पूछ सकते हैं। तो मसदर, तो फेल का भी मतलब वही है, उसमें भी किसी काम का करना या होना पाया जाता है। तो क्या फर्क है मसदर में और फेल में? मसदर है इस्म, ठीक है, मसदर है इस्म। फेल, फेल ही है, फेल जो, जैसे आप पार्ट ऑफ स्पीच में देखते हैं कि जो कोई भी लफ्ज है ना हमारे यहाँ, हम जो भी लफ्ज बोलते हैं मुंह से, इन तमाम अल्फाज को 7 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। अगर मैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा दूं, तो जितने भी हमारे अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं, इनको 7 ग्रुप में तकसीम किया गया है। तो कुछ ग्रुप है, कुछ अल्फाज है इस्म, कुछ है फेल, कुछ है जमीर, कुछ है सिफत, कुछ है कैद, कुछ है हर्फ, कुछ है सोत। तो इस तरह से 7 हिस्सों में तकसीम किया गया। तो बुनियादी तौर पर मसदर में और फेल में जो फर्क है वो ये है कि मसदर में किसी काम का अंजाम पाना या होना तो पाया जाता है, लेकिन इसमें जमाना नहीं पाया जाता और इसमें सब्जेक्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर किसी काम के करने का तस्वुर भी मौजूद है मफहूम के एतबार से, और उसमें सब्जेक्ट भी है और उसमें टेंस भी है यानी जमाना भी है, तो फिर वो मसदर नहीं रहता, वो फेल बन जाता है। तो फेल के लिए जरूरी क्या है? सिर्फ मफहूम का होना जरूरी नहीं है, उसके लिए जमाने का भी होना जरूरी है उसमें, और सब्जेक्ट का भी होना जरूरी है, तो फेल बनता है। ठीक है, तो मसदर से क्या बनता है? फेल बनता है। फेल बनने के लिए मफहूम के अलावा 2 चीजें, 2 बुनियादी चीजें और चाहिए। वो क्या है? सब्जेक्ट हो उसमें, और उसमें टेंस हो, यानी कोई जमाना पाया जाए। मिसाल के तौर पर आमदन, आना, आना यानी इसमें मफहूम वर्ब का है। ठीक है, किसी काम का मफहूम तो है, लेकिन आना में ना जमाना है ना सब्जेक्ट है, लिहाजा ये मसदर है। हम मसदर से फेल बनाते हैं, मसदर से फेल बनाते हैं। ठीक है, सर तो फेल मसदर से हम फेल बनाते हैं या जमाना बनाते हैं? जिस काम में मफूल भी पाया जाएगा और जमाना भी पाया जाएगा वो तो खुद ही जमाना कहलाता है ना। जैसे गुज़िश्ता है, गुज़िश्ता है, हाल है, जमाना आइंदा है, तो वो तो खुद ही जमाना बन जाता है। फेल हो गया। तो फेल 3 जमानों में होते हैं। फेल के 3 जमाने होते हैं, 3 टेंस होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। फेल के साथ क्या होता है? फेल 3 जमानों में से एक जमाने में होगा, 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट के साथ होगा। तो ये बात है। आप बाद में पूछ लीजिएगा, जो भी आपको पूछना है ना बाद में आप पूछ सकते हैं। जो आपके क्यूरीज है, सवालात है, वो आप बाद में पूछ सकते हैं। अभी बात में मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। तो आमदन, आमदन इससे हम फेल बनाते हैं। ठीक है, फेल जब हम कहते हैं तो फेल में सब्जेक्ट भी होता है, जमाना भी पाया जाता है। अगर हम सिर्फ जमाने नहीं बनाते, हम इंग्लिश में जिस चीज को हम टेंस कहते हैं ना, टेंस का मतलब टाइम नहीं है। ठीक है, टेंस में जिसमें सब्जेक्ट भी है, टाइम भी है, दोनों चीजें शामिल हो, तब हम उसे टेंस कहते हैं। बहरहाल, तो आमदन से हम आमद बना सकते हैं, आ बना सकते हैं, मी आयम बना सकते हैं। तो इससे मुख्तलिफ वर्ब की किस्में हम बना सकते हैं। इसी तरह से रफ्तन से बना सकते हैं, दीदन से बना सकते हैं। तो ये सब मसदर है। फारसी में मसदर की अलामत क्या है? दन या तन पे खत्म होता है। फारसी में मसदर की क्या अलामत है? दन या तन पे खत्म होता है। जैसे आमदन, रफ्तन, दीदन, निशस्तन, ख्वाबीदन, खुर्दन, बहुत सारे अफ़आल आप तक मसादिर आप पढ़ चुके हैं। तो मसदर से जब हम फेल बनाते हैं तो हमें फेल बनाने से पहले मसदर से 2 फॉर्म्स निकलते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में देखते हैं कि आप मसदर से इन्फिनेटिव के फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, या जैसे प्रेजेंट फॉर्म, आप पास्ट फॉर्म आप कह सकते हैं। फारसी में 2 ही फॉर्म्स हैं। फारसी में मसदर से 2 फॉर्म बनते हैं, और इन फॉर्म्स को हम फारसी में सिताग कहते हैं।
क्या कहते हैं? सिताक। यानी सिताक यानी पास्ट फॉर्म एंड प्रेजेंट फॉर्म, दो ही फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट फॉर्म से हम प्रेजेंट के टेंस बनाते हैं, अफआल बनाते हैं, और पास्ट के सिता के पास्ट या पास्ट स्टेम से क्या बनाते हैं? पास्ट के टेंसेस बनाते हैं। तो दो ही टेंस बनाते हैं, दो ही सिताक हम बना सकते हैं। आपको सिताक बनाने के तरीक़ेकार के मुताबिक क्या बताया था मैंने? सिताक कैसे बनाते हैं हम? तो फारसी में मसदर के कितने सिताक है? मसदर से दो फॉर्म से, ये दो फॉर्म है, सिताक के हाल और सिताक के। फारसी में हम क्या कह रहे हैं? सिताक। आप भी कह सकते हैं, ठीक है, बुन भी कह सकते हैं, बुन भी आप कह सकते हैं, बुन। आप रीशे भी कह सकते हैं, आप रीशे भी कह सकते हैं। तो ये तीन नाम हैं, आपको जो नाम आसान लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि किताब में सिताक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, किताब में क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? सिताक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो हम सिताक ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके दो नाम और भी है, बुन या रीशे। बुन या रीशे भी इसको कहा जाता है। तो कितने रीशे हैं? दो है, दो सिताक। सिताक फारसी में दो है, फारसी में दो ही है। कौन से है? सिताक के गुज़श्ते और सिताक के हाल। सिताक के गुज़श्ते बनाने का तरीका बहुत आसान है, ये आपको बताया था। क्या करेंगे? मसदर का नून हस्फ कर देंगे, ठीक है, मसदर है वो हस्फ कर देंगे। जैसे रफ्तन से रफ, आमदन से आमद, दीदन से दीद, गुफ्तन से गुफ्त। बहुत सारे हैं, ये तो मुश्किल नहीं है ये बनाना। तो सिताक के गुज़श्ते बनाना मुश्किल नहीं है। और सिताक के गुज़श्ते से हम क्या बनाते हैं? पास्ट के टेंसेस बनाते हैं, पास्ट के टेंसेस, ठीक है। पास्ट माजी हम सिताक के गुज़श्ते से बनाते हैं। सिताक के हाल बनाने का तरीका क्या है? सिताक के हाल में उसका दूसरा फॉर्म याद करना होता है। सिताक के हाल बनाने का कायदा ये कुल्लिया नहीं है, ठीक है। कुछ कवानीन हैं, अगर आप लेवल 4 तक जाना चाहें तो उसमें फारसी में बुनियादी तौर पर जितने भी मसादिर है वो 8 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है इनको। यानी मसदर की जो शक्ल के एतबार से, फॉर्मेशन के एतबार से मसदर 7 किस्म के, 8 किस्म के हैं, ठीक है। लेकिन उसमें इस्तिस्नाआत भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बेहतर यही है, मैंने जो आपको तरीका अभी बताया है वो आप याद कर लीजिएगा। जब भी आप मसदर याद कर ले, सिताक के हाल को भी साथ में याद करें। यह आसान तरीन तरीका है, क्योंकि मसदर तो आपको याद करना पड़ेगा, लिहाजा जब भी मसदर याद करें सिताक के हाल को साथ में याद कर ले, ये बहुत ही आसान है। चले, अब मुझे आप ये बताइएगा, जो अल्फाज यहाँ पे हमने लिखे हैं, रफ्त का सिताक के हाल क्या है? रो। वेरी गुड, रफ का सिताक के हाल रो है। आमदन का सिताक के हाल क्या है? आ। दीदन का सिताक के हाल क्या है? दीद ना, बीन। बीन, खुर्तबीन, दूरबीन, इसमें जो बीन है ना वो यही है। तो गुफ्तन का सिताक के हाल क्या है? गो। गो नहीं, गु। तो ये आप देख सकते हैं कि सिताक के हाल बनाने का कोई फिक्स कायदा नहीं है। लिहाजा आप जब भी कोई नया मसदर सीखे, जब भी, तो आप सिताक के हाल को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, साथ याद कर लीजिएगा। और किताब में भी जब भी नया मसदर कहीं पे आया है तो उसके साथ सिताक के हाल साथ में मेंशन है, ठीक है। मैंने आपको पूरी एक लिस्ट भेजी थी, आपको याद है, सिताक के अफ़आल के लिस्ट फारसी के मसादिर की? जी सर। अभी रिसेंटली जब आपका कोर्स कंप्लीट हुआ था फर्स्ट लेवल का, तो आपको भेजा था, ठीक है। वो डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली आप कम से कम 2 याद कर लेना, तो महीने में आपके पास 60 हो जाएंगे, 2 महीने में आपके पास 120 वर्ब हो जाएंगे। किसी भी जबान को बोलने के लिए आपको जो है ना, अगर 250 से 300 वर्ब अगर आते हैं तो काफी है। 250 यानी 200 to 30 वर्ब्स अगर आप जानते हैं
तो आप डे टू डे कन्वर्सेशन करने के लिए आपके लिए काफी है, ठीक है, सही। और इतने ही इस्तेमाल होते हैं। जी सर। ज़बान एक लामहदूद समंदर है, ठीक है, सही। उसमें से जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी अपनी सलाहियत के मुताबिक, उसमें किसी के पास 4 कतरे हैं, किसी के पास 5 कतरे हैं, लेकिन पूरा समंदर किसी के दस्तरस में नहीं है। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? मस्दर, मस्दर का मतलब क्या है, मस्दर में और फेल में क्या फ़र्क है, और मस्दर से कितने उसके फार्म्स बनते हैं। सिता के हाल और सिता के गुज़श्ते 2 ही फार्म्स बनते हैं। सिता के गुज़श्ते बनाने का तरीका ये है कि नून हटा दे सिर्फ। सिता के हाल बनाने के बारे में आपको ये बताया कि कोई कायदा, कोई फिक्स रूल नहीं है, बल्कि आप जब भी मस्दर याद करें तो सिता के हाल को साथ में याद कर ले, ठीक है? इज दैट क्लियर? जी सर। चले, अब खानम साइमा आपका सवाल आप है तो पूछ सकते हैं। सर नहीं, कुछ नहीं पूछना। आप नाराजी हो गई, मतलब ये लगता ही है। नहीं 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 सर, मैं ये समझना चाह रही थी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब ये था सर, जैसे उर्दू या अरबी जबान में जिसको हम मतलब फेल कहते हैं, जो उसका निशानी होती है ना, जैसे उर्दू जबान में आना जाना खाना, हम इसको फेल कहते हैं, और अंग्रेजी जबान में हम इसको वर्ब कहते हैं, टू नहीं कम, नहीं, टू गो, टू सी वगैरह वगैरह। देखिए उसी को हम मस्दर कहते हैं। तो मैं मतलब मैं ये देखिए, समझना चाह रही थी कि फिर तो मैं खुद ये ब खुद आपको ये मस्दर का बता दूं, मतलब। मैं ये आपको बता दूं कि ना अरबी में हम ऐसा कहते हैं, ना उर्दू में हम ऐसा कहते हैं, क्या सर? ठीक? हम इसको फेल नहीं कहते। उर्दू में भी आना फेल नहीं है, आना मस्दर है। अरबी अच्छा में तो भी मस्दर अपनी जगह मौजूद है, फेल अपनी जगह मौजूद है। मस्दर इसम के जुमरे में आता है, उर्दू में भी यही है। उर्दू में भी यही है ना, क्योंकि मैंने तकरीबन ईरानियों को, यूं समझ लीजिएगा, 12 साल तक उर्दू मैंने पढ़ाई है उनको, तो मैं जी सर। जानता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम, आप तो लाजमन बोलते ज़रूर है, हम सब बोलते हैं, लेकिन उर्दू जी भी स्ट्रक्चर के नुक्ता नज़र से हम सब नहीं जानते, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जी जानते ही नहीं, सर। ठीक है। जो मिसाल के तौर पिछले दिनों मैंने आपसे आपसे पूछा, या कोई और क्लास से, मुझे याद नहीं है, मैं जी कुर्सी सर। पर बैठता हूँ, ठीक जी है, सर। तो हाँ कुर्सी क्या है, मफऊल है या नहीं है? हाँ सर, मफूल नहीं है, है ना। ये तो गलत है। कुर्सी मफऊल है, मैं कुर्सी पर बैठा कहेंगे या बैठी कहेंगे, क्या कहेंगे? जो भी आप अपने जी, सब्जेक्ट के कुर्सी पर हिसाब बैठ। से कहेंगे ना, मैं कुर्सी पर बैठी, जी मैं सर। कुर्सी पर बैठा, राइट? जी सर। जी सर। तो सर मैं कुर्सी पर बैठा तो कुर्सी मफूल क्यों नहीं है? कुर्सी के ऊपर काम हुआ है ना, तो यही तो मफूल पे मसला, ही तो होता कुर्सी है। पर नहीं, कुर्सी, यही तो समझने में गलती है ना। देखें, आप बोल जरूर रहे हैं, लेकिन ये बहस कहीं और चली जाएगी। उर्दू में भी मसदर और वर्ब अलग है, ठीक है, मानी मुशख्खस है। अच्छा। आप कोई ग्रामर की कोई कवायद उर्दू की कोई किताब उठा ले, और उसमें मसदर की जी सर। तारीफ और उसकी तारीफ देख लीजिएगा। देखें, जी सर। ग्रामर का जो मतलब है ना, ग्रामर का ताल्लुक किसी एक जबान से नहीं है। जी हाँ। ग्रामर एक कुल्ली एक रूल है, तरीकाकार है। जर्नल रूल है, एक। जिसका एप्लीकेशन दुनिया की तमाम जबानों पे अप्लाई होता है। जी ये सर। इल्म ना, इल्म का मतलब ये होता है, साइंस का मतलब हमेशा ये होता है कि वो जो एक्सप्लेनेशन या वो जो डिफिनेशन मतरह करते हैं, फिक्स जी सर। करते हैं या हम मुशख्खस करते हैं, वो दुनिया में कहीं पे भी एप्लीकेबल हो, तभी तो ये नॉलेज कहते हैं इसे हम। जी अगर इसम सर। की तारीफ अरब वाले कुछ और करें, ईरान वाले कुछ और करें, पाकिस्तान वाले कुछ और करें, तो अगर हम सब किसी एक बात पे इजमा नहीं है, तो फिर वो दैट इज सही। नॉट ए साइंटिफिक मेथड, वो साइंटिफिक मेथड नहीं है। तो मसदर में फेल का मफहूम होता है, फेल के लिए मफहूम के साथ साथ फाइल का भी होना जरूरी है, सब्जेक्ट का भी होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर वो फेल हरगिज नहीं है, दुनिया की चाहे कोई भी जबान हो। तो बहरहाल, ठीक है सर। ये आप क्लास के बाद भी ये डिबेट आप मुझसे करना चाहे, बहस करना चाहे, या इसको नहीं सर, असल ना चाहे, मैं इसलिए करना ना चाह चाहे, मैं इसलिए क्लास जानना के चाह रही बाद थी भी, कि वो क्लास के बाद फिर क्या। आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, राबिता कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी आ जाएं किसी दिन बैठ के, नहीं हो नहीं नहीं सकता नहीं है मैं सर। गलत से समझ लेंगे। नहीं 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 नहीं, इस्तगफार। मेरा मतलब ये था सर, ताकि हम आगे जब जारी करें तो वो समझ पहले ही समझ में आ जाए ना, तो आगे तक फिर वो उलझन परेशान नहीं करती है। खुर्दान मसदर है, खोर। ठीक है, जी। खुर, सता के हाल। खानदान, खान, खान।
रफ्तन रो रो, करदन कुन। कौन। देखिए एक बात और पॉइंट की बात है, क्योंकि ये आपकी क्लास के लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको बता देता हूं कि ये है कि वर्ब ना कभी भी जुमले में उसका जो रोल है वर्ब का होता है, वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। वर्ब कभी भी जुमले में सब्जेक्ट नहीं बन सकता। वर्ब का अपना रोल है, सब्जेक्ट का अपना रोल है, लेकिन मसदर सब्जेक्ट बन सकता है। हाँ हाँ हो सकता है। ठीक है, मसदर सब्जेक्ट हो सर। सकता है। तो सब्जेक्ट होने के लिए या नाउन होना इस- चाहिए, ठीक जी है, सर। या सिफत होना चाहिए कि जो जानिशीन इस्म हो। अदरवाइज सही कोई दूसरा जो जुमले के जो पार्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से कोई भी जुमले का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। चलें बताइएगा कि खानुम मरियम आप बता दें कि बख्शीदन का सिता के गुज़श्ते और सिता के हाल बता दीजिएगा, और शिनाख्तान का भी दो दो बता दीजिएगा जी। सर बख्श 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 और सता के हाल। अच्छा सिता के हाल बख्श हो गया, सिता के गुज़श्ते सर बख्शीद, बख्शीद, शिनाख्तन का शनाख्त, सिता के गुज़श्ते शनाख्त, और सिता के हाल होगा शनासे शिनास, शनास। शिनासा इसी शिनास से बना है। राइट, दिल अगर खुदा शिनासी हो, शिनास शनास। हो। खान में खूब आगा ये जफर आप बता दीजिएगा। खूब खान में जेबा हस्त जा बजा शुदे। खूब आगा ये जफर शुमुर्दान का बता दे, शुमुर्दान और खासतान का बता दे। आगा जफर, खान में सर सना मैं आप बताइए, खान में सना बता दे। हाल में शुमर शुमर और सिता के हाल में शुमार, शुमार, और गुज़िश्ता में जो है वो शुमरदीद, शुमुर्द, शुमुर्द। ये शुमुर्द। जस्ट आपको नून हटाना है, शुमुर्द, ओके। शुमुर्द। खासतन और में ख्वास्तन में ख्वास्त, खास सिता और के गुज़श्ते और ख्वास्तरू, खाह, खाह ख्वाह। खाह मखाह जो हम कहते हैं ना वो यही है, खाह ओके। खाह। सिता के गुज़श्ते है खास, सिता के हाल है खाह ख्वाह। खाह जी। खानुम राबिया नेक्स्ट। फरोख्तन का सिता के हाल है फरोख्त, फुरुख्त, फुरूश। फुरूख फुरुख्तन का क्या है सिता के हाल? फरोश और फरोख्त, फरोख्त। फुरूश, हाँ फुरूश। हम भी कहते हैं बहुत सारे उर्दू में बहुत सारे किताब फुरोश, लेकिन हम ओ के साथ पढ़ते हैं फुरोश करके। फारसी में क्या है? फुरूश, फुरूश, फुरूश और फुरूख है। लिखो साख्तन का क्या है? साख्तन का साख, साख साख और और हाल, सिता के साज। हाल इसका क्या है? साज। साज। साज, यस। साज। खानुम साइमा नेक्स्ट। सर फहमीदन का सता के गुज़िश्ते फहमीद है और सता के हाल फहम है। फहम है। खूब। रसीदन का रसीदन का सता के गुज़िश्ते रसीद है और सता के हाल रस। रस है। खानुम ज़ेबा नेक्स्ट। दानिश, सिता के गुज़िश्ता का दानिश, दानिश। और सिता के हाल हाल जो है दान, दान, दानिश व दान है। दान। लिखो नेक्स्ट। दादन का दादन का दाद और दे, दात व दह। आगे ओन मोहम्मद। पुख्तन का जी हाँ बजाओ। पुख्तन,
पुख्तन का सिता के गुज़श्ते सिता के हाल। पुख्तनगा सर सिता के गुज़श्ते पुख्त, पुख्त सिता के हाल सिता के हाल पस, पज। खैली खूब, सिता के गुज़श्ते पज। बुर्दन का भी गित बुर्दन सिता के हाल बर, सिता भले सिता के हाल बर बर और सिता के गुज़श्ते बुर्द. बुर्द. خیلی خوب. آقای ظفر برگشتید شما. جی آقا جی آقا. خب بفرمایید که شما مثلا بگید که آوردن آوردن صدا که گذشته صدا که حال. जी आगा सिता के गुज़श्ते होगा आवर्द और सिता के हाल आवर آور آور. خب आवर. دیدن که چی میشه؟ دیدن. दीद व बीन. خب اجازه بدید آقای ظفر بگه. جی. दीदन का सिता के गुज़श्ता दीद और सिता के हाल बीन. این خیلی خوب. پس یه ستا که حال و ستا که گذشته امیدوارم که شما متوجه شدید. درسته؟ بله آقا. خیلی خوب. ما یاد گرفتیم کلاس گذشته، یعنی ترم گذشته یاد گرفتیم که گذشته ساده رو ما از ستاک گذشته درست میکنیم، میسازیم. یعنی हम ستاک گذشته से हम पास्ट सिंपल पास्ट का टेंस जो है बनाते हैं, राइट? सिंपल पास्ट. ستاक बनाने का तरीका क्या है? ستاक के गुज़श्ते के बाद शिनासे हाय गुज़श्ता जब हम लगा देते हैं, फारसी में याद रख लीजिएगा कि सब्जेक्ट का की जो अलामत है शिनासे की शक्ल में हम हमेशा फेल की बुन के साथ, रीशे के साथ, इस्ताक के साथ शामिल करके लिखते हैं. यानी कभी भी शिनासा के बगैर फेल नहीं आ सकता. ये बात याद रख लीजिएगा, फेल नहीं आ सकता, मजदर आ सकता है. खब शिनासे हाय गुज़श्ते इबारतन आज पास के लिए जो हमारे पास शिनासा है वो क्या क्या है? अम, ई और थर्ड पर्सन के लिए गुज़श्ते में कोई शिनासा नहीं है. ठीक है? ईम, ईद और अंद. जैसे आप देख सकते हैं कि रफ्त सिता के गुज़श्ते हैं, उसके साथ अम लगाया रफ्तम, ई लगाया रफ्ती, और थर्ड पर्सन के लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, रफ्त. और ईम लगाया रफ्तीम, ईद लगाया रफ्तीत और अन लगाया रफ्तन. यानी रफ्तम में गया, रफ्ती तू गया, रफ्त वो गया, रफ्तीम हम गए, रफ्तीत आप गए, रफ्तन वो गए. तो ये मैंने जस्ट मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल किया, आप मुअन्नस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी रफ्तम में गया, में गई भी हो सकता है, क्योंकि फारसी में ये जो जिन्स है, तज़कीर और तानीस है, मुज़क्कर और मुअन्नस है, ये मौजूद नहीं है. ठीक है? तो मैं गया, चाहे लड़की हो तो वो भी मैं गया कह सकती है, और लड़का हो तब भी वो मैं गया कह सकता है. ठीक है? तो कोई इशू नहीं है खास. रफ्तम, रफ्ती, रफ्त, रफ्तीम, रफ्तीत, रफ्तन. हो अलन हाल सादे. हाल सादे भी आपने पढ़ा है, हाल सादे बनाने का तरीका भी आप पढ़ चुके हैं. तो एक एक करके मुझे बता दीजिएगा कि इस जुमले को, हाँ ये हाल सादे में है, मीसाजन हाल सादे में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है गुज़श्ते सादे में. किस में कन्वर्ट करना है? गुज़श्ते सादे में कन्वर्ट करना है. तमरीन के तौर पे खानुम मरियम बेफरमाई. जी आगा. शहर कूचकी दर दर आंजा मीसाजन. मीसाजन. शहर कूचकी दर आंजा मी साख्तन. खैर खूब. हाँ जी. साख्तन, लेकिन मी नहीं आएगा. सिंपल पास्ट में मी नहीं आएगा. अगर आप कहेंगे सिर्फ साख्तन, मी साख्तन नहीं, मी साख्तन कहेंगे तो क्या होगा? ये पास्ट हैबिचुअल टेंस बन जाएगा, यानी बनाते थे, आप नहीं बनाते. ठीक है? अच्छा, बनाते थे. मी इस्तेमाल हो सकता है पास्ट में भी, लेकिन वो टेंस चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? टेंस चेंज हो जाएगा. आपको मी के बगैर कहना है साख्तन, मी साख्तन नहीं. खैली खूब. आगे ज़फर. मर्दूम. जी आगा. जी. मर्दूम बे तेहरान मुहाजरत मिकुनन. इनो बे माजी, माजी हाय गुज़श्ते सादे तब्दील करें. तेहरान मुहाजिरत
कुनंद मीकुनत है यहाँ पे लिखा हुआ। मर्दम बेतहरान मुहाजिरत करदन। मेरे ख्याल से आपके नेटवर्क के साथ कुछ इशू है। मर्दम बेतहरान मुहाजिरत करदन। करदन। खैर खूब, मेरे ख्याल से आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा वीक है, जिसकी वजह से आवाज़ आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है और रुक रुक के आ रही है। खूब, इश्काली नदार है। खानुम सना, नेक्स्ट वन। मर्दम बेतहरान मुहाजिरत करदन। खैर खूब, मर्दम बे तेहरान मुहाजिरत करदन। खूब फहमीदी। खानुम सना, जुमले बादी रो बिगित शुमा मा सुआल माँ सवाल फहमीम। शुमारा मी फहमीम। माँ सवाल शुमारा फहम हामिदीन। फहमीदी। फहमीदीन फहमीदीन गुज़श्ते क्या है इसका? फहमीद सिनासा लगा दे। नेटवर्क का इशू है। जी जी सर, समझ गए। मर्दम बेतहरान मुहाजिरत करदन बबख्शीदा। इश्काली नदार है। खैर ममनून। खूब, खानुम सना शुमा तकरार कुनी, जुमले खुदतुन रा आप रिपीट करें। मर्दोम। माँ खूब, मा सुआल शुमारा माँ मी फहमीम, सवाल ये प्रेजेंट है। पास में क्या होगा? मा सुआल शुमारा माँ सवाल शुमारा मी फहमीद फहमीदीन फहमीदीन पास में बता दे। सिंपल गुज़श्ते सादे फहमीदीन। फहमीदीन मा सुआल शुमारा फहमीदीन, हमने आपका सवाल समझ लिया। ठीक है। ओके شما از 50 تا 100 میشمارید. شما از 50 تا 100 میشمارید. خانم رابیه، شما از 50 تا 100 میشمارید. اینو اگر میخواهید گذشته تبدیل کنید چیکار میکنید؟ خانم رابیه. خب خانم سایمه شما بگید. شما از 50 تا 100 می شمارید. आप 50 से 100 तक गिनते। فقط अरे تبدیل شما کنید به گذشته ساده. به شما از گذشته 50 ساده تا 100 شماردید. شمردید. شماردید. شمردید. خیلی خوب. خانم رابیه برگشتید شما. خب آقای सर उनका ओम, माइक मेरा ख्याल है ऑन नहीं है, माइक آقای ऑन करे. خب آقای اون جمله بعدی رو بگید. دخترها هم به قله می روند. خب دخترها هم به قله می روند. آقای اون. अरे नो के माइक बंद है क्या फारूक? بله اون आपको आवाज आ रही है؟ بله بگید. دخترها هم به کله می روند. خب اینو به ماضی، به گذشته ساده تبدیل کنید. دخترها هم به کله رفتند. رفتن. خیلی خوب. دخترها هم به قله رفتند. خانم رابیه اگر شما برگشتید بگید جمله بعدی رو. او تهران را با سیول. او تهران با سیول مقایسه می کنم. میکند ہے. او تهران را با سئول مقایسه میکند. اینو به گذشته تبدیل کنید. به گذشته ساده. سیول مقایسه کند. کرد. او تهران را، वो तेहरान को सियोल के साथ कंपेयर करता है. उसने तेहरान को सियोल के साथ कंपेयर किया. कर्त किया. ठीक है. मीकुनत करता है. मीकुनत करता है. कर्त किया. خب خانم زیبا. خانم زیبا شما بگید که مثلا آنها از صبح تا شب کار میکنند. اینو به گذشته تبدیل کنید چی میشه؟ آنها از صبح تا شب کار
Kar kardan. Kar kardan. Anha as-subh ta shab kar kardan. तो ये दो चीजें तो हम अफ़आल हम पहले उसमें लेवल में पढ़ चुके हैं, ये जस्ट एक रिवाइज हम कर रहे हैं। तो आपने देख लिया कि इसमें बनाना मुश्किल नहीं है, ये दोनों बहुत सिंपल है। और लेकिन चैप्टर 6 से आगे हम नई चीजें पढ़ेंगे, तब तक तो इसको जो कुछ हमने पढ़ा है उसको रिवाइज हम कर रहे हैं। This simple past describes an action or a state that occurred in the past. It may have occurred once or repeatedly. माजी में चाहे एक दफा हुआ हो, चाहे 10 दफा हुआ हो, कोई ऐसा काम जिसको जाहिर करने के लिए हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुज़श्ते सादे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते ये गुज़श्ते फ़कत एक रोज़ बे मूज़े रफ्ती। पिछले हफ्ते हम एक दफा म्यूजियम गए, इन हफ्ते हर रोज रफ्ता, इस हफ्ते रोजाना गए। तो मुश्किल नहीं है, दोनों के लिए हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनफी बनाने के लिए क्या करते हैं हम, फेल मुस्बत से पहले रफ्तम से पहले मिसाल के तौर पर ना लगाएंगे, ना रफ्तम, ना यौमदम, सुआल ना करदम, आंजा ना निशस्तम, बेशुमा ना गुफ्तम। तो ये चीजें आप कह सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हम उसकी तरफ, मतन की तरफ, राइट। मतन को एक दफा मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है। मतन को मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ने के बाद सर स्क्रीन नीचे कर दे। मुझे पता है, कर रहा हूं। अच्छा सर, थैंक यू जी। तो मैं पढ़ लेता हूं, कोई लफ्ज मुश्किल है तो आप बता दीजिएगा बाद में, नहीं तो ये इसका तर्जुमा आप लिख के मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है। तर्जुमा आप लिखेंगे उर्दू में, फारसी, इंग्लिश में, जिसमें लिखना चाहे, फिर उसका तर्जुमा मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। तेहरान जी सर। दर जुनूब कोहाय अलबोर्ज व नजदीक क़ुल्ले दमावंद वाक़ است. दमावंद बुलंदतरीन क़ुल्ले कोहाय अलबोर्ज व बुलंदतरीन क़ुल्ले ایران 5671 متر ارتفاع دارد. تهران که از 200 سال قبل پایتخت ایران است، شهر کوچکی در شمال شهر بزرگ و تاریخی ری بود و امروز ری شهر کوچکی در جنوب تهران است. مساحت تهران به 740 کیلومتر مربع میرسد و جمعیت آن بیش از 8 میلیون نفر است که اغلب از شهرهای مختلف ایران در 100 سال گذشته به این شهر مهاجرت کرده اند. تهران امروز شهر بزرگی است که در آن ساختمان‌ها و برج‌های بلند، بزرگراه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، موزه‌ها، دانشگاه‌ها، مترو و بسیاری نقاط دیدنی دیگر وجود دارد. خب चलिए, ये एक टेक्स्ट था जो मैंने पढ़ लिया आपके लिए। ये पहले के बनिस्बत जो पिछले सेमेस्टर में या पिछले लेवल में जो आपने पढ़ा था उसके मुनासिबत से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो बहुत ही सिंपल किस्म का टेक्स्ट था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुश्किल हरगिज नहीं है। कोई लफ्ज आपकी समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, मसाहत के मायने बताएं। रकबा। अच्छा, रकबा यानी रकबा, रकबा। और सर बुर्ज और साख्तमान में क्या फर्क है? ये नहीं समझ में आया। इमारत हो सकती है, साख्तमान कोई भी इमारत है, बुर्ज सिर्फ टावर को कहा जाता है। जी आगा, मुरब्बे का क्या मतलब है? वही मुरब्बा जो है, स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर। हम भी कहते हैं मुरब्बा किलोमीटर। जो स्क्वायर किलोमीटर होता है ना, स्क्वायर की शक्ल में, शेप है, असल में मुरब्बा शेप को कहते हैं। एक है मुस्ततील, एक है मुरब्बा, एक है ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, मुसल्लस। ये शेप्स के नाम है, मुरब्बा यानी स्क्वायर। जी थैंक यू सर। ये तारीख है, री बूथ का क्या मतलब है? तारीख रे शहर रे। हम यहाँ पे उर्दू वाले रे पढ़ते हैं इसको, रे, लेकिन ये क्या है असल में रई है, रई। हम उर्दू में पढ़ते हैं, हम उर्दू में उसके बगैर, ताकीद के बगैर, उसके बगैर क्या कहते हैं, स्ट्रेस के बगैर रे पढ़ते हैं, रे। फारसी में ये रई पढ़ते हैं, रई। जी
सर जैसे ये फारसी में नाम है ना रई? मई कहते हैं, शराब को हम फारसी में मे कहते हैं, मे नोशी। ठीक है हम्म, जी, इसी तरह से। और कोई लफ्ज? कोई नहीं और सर, लफ्ज? सब सब समझ में आ गया सबको? जी सर। चले, तो इसका तर्जुमा आप लोग लिख के मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है? ठीक है। जी सर। तो ठीक ये है। आप अभी भेजेंगे हमें या नहीं नहीं, नहीं ये नहीं, किताब में ये है, हमने पढ़ लिया, ये किताब में पढ़ लिया ना, अच्छा किताब में है, ठीक है किताब में है, हमने पढ़ लिया है। सिर्फ एक चीज का मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं कि मुहाजिरत कर दे अन, ये है हिजरत की है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जी सर। माजियत जिसे हम कहते हैं हाल तमाम, हाल तमाम भी कह सकते हैं, या प्रेजेंट। उर्दू में माज़ी करीब कहते हैं सर। हाँ, क्या कहते हैं? उर्दू में माज़ी करीब कहते हैं। माजी करीब भी कह सकते हैं, ठीक है। माजी, आप फारसी में भी माजी करीब ही कहते हैं, या गुज़श्ते माज़ी नकली, गुज़िश्ते गुज़श्ते नकली हम कहते हैं आमतौर पर। माजी करीब भी सही है, गलत नहीं है, माजी में इस्तेमाल होते रहे हैं, बाद में इन्होंने इसको गुज़श्ते नकली कर दिया, ठीक है। तो गुज़श्ते नकली है ये, यानी मुहाजिरत की हैं, ठीक है, मुहाजिरत हिजरत की है। हिजरत की है। वेरी गुड। तो ये, इसके अलावा बाकी कोई टेंस ऐसा नहीं है कि जो हमने नहीं पढ़ा हो, लिहाजा कोशिश कर ले, ज्यादा नहीं है ये, आपके 5 मिनट का काम है। अगर आप लिखें तो लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? सर ये रई जो है ये शहर का नाम है ना? जी, ये अभी तेहरान के जुनूब में एक छोटा सा कस्बा है, जी ठीक है। ठीक है, लेकिन ये कदीम जमाने में ये रे बहुत बड़ा शहर था, और जी तेहरान उसके शिमाल में एक छोटा सा कस्बा था, जी ऐसे ही था। ठीक है। इसी जमाने में ठट्ठा, यूं समझ लीजिएगा, कैपिटल था सिंध का पूरा, जी। ठीक है। वहां पे सारे हुक्मरान वहां पे बैठते थे, हम्म, और कराची एक मछेरों की एक बस्ती थी, जी सही। लेकिन आज देखें तो कराची एक मेगा सिटी है और वो एक बस्ती है। जी सर। जी बिल्कुल, ये सिचुएशन है। जी। चले चले, फिर मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू आज सर। की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? ओके। बहुत बहुत शुक्रिया।